الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ نبی علیہ السلام کے سیرت کے سلسلہ وار درس، اس سے پہلے نبی علیہ السلام کے سیرت کے جو کچھ اسباق تھے، احوال تھے، وہ گزر گئے، اور شیب ابی طالب سے مسلمانوں سے واپسی کے بعد کچھ اس طرح حالات آئے کہ اس پر نبی علیہ السلام غمزدہ ہو گئے، اور وہ حالات اس طرح تھے کہ چند ہی روز بعد شیب ابی طالب سے واپسی پر رمضان یا شوال میں نبوت کے 10ویں سال اس میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور پھر 3 دن یا 5 دن بعد خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی انتقال گیا۔ اور اس طرح بخاری، مسلم اور نسائی میں ہے کہ جب ابو طالب مرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس آ گئے، تو اسی وقت ابو جہل اور ابی بن خلف، ابی بن عبداللہ بن ابی امیہ، یہ دونوں ان کے پاس تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو یعنی اپنے چچا کو بتایا کہ آپ اتنا بس کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کے کل قیامت کے دن میں آپ کا شفارسی بن جاؤ۔ تو جب اس نے ان کو یہ کہا، نبی علیہ السلام نے ان کو کہ آپ کلمہ پڑھ لے کہ کل قیامت کے دن میں آپ کے لیے یعنی حجت کے لیے میں دلیل بن جاؤ۔ تو ابو جہل نے ان کو بتا دیا کہ ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کو ملت کو چھوڑتے ہیں اور ایک نیا دین آپ اختیار کرتے ہیں؟ تو اس پر ابو طالب نے وہ لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا، اور آخری کلمہ جو ان کے زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ اعلیٰ ملت عبد المطلب، یعنی میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ ابو طالب اس نے ایمان نہیں لایا ہے، بلکہ یہ کفر اور شرک کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ تو ابو طالب کے مرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں برابر ابو طالب کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک خدا کی طرف سے مجھے منع نہ کیا جائے۔ تو اس پر قرآن کریم کی تقریباً کئی آیت و نازل ہو گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اپنے چچا کے کیا کام آئے، یعنی آپ ان کے کیا کام آ گئے، یا آخرت میں آپ کی وجہ سے ان پر کوئی کمی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس پر نبی علیہ السلام نے بتایا، اور عباس نے ان کو بتایا کہ آپ کا حامی اور ناصر بھی تھا، کہ آپ کی حمایت بھی کر رہا تھا، اور جس وقت آپ پر یہ لوگ آپ کو ظلم اور ستم کرتے تھے تو اس وقت آپ کے ساتھ شیب ابی طالب میں بھی چلے گئے، اس نے تکلیف بھی برداشت کی لیکن پھر بھی ایمان نہیں لایا۔ تو اس کو اس کا کیا وجہ ہو سکتی ہے، یعنی اس پر عذاب میں کوئی کمی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ٹخنوں تک آگ میں ہے، اگر میں اس کے شفاعت نہ کرتا تو شاید کہ وہ جہنم کے تہ میں ہوتے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے ان کو صاف الفاظ میں بتایا، اگر میں ان کے لیے شفاعت کا دعا نہ کرتا تو شاید یہ جہنم کے تہ میں ہوتے۔ اسی وجہ سے اس کو آج یعنی میری دعا کی وجہ سے اس کو صرف ٹخنوں تک عذاب ہوگا، پاؤں سے لے کر ٹخنوں تک، اس سے آگے ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ اور علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو طالب
सर से लेकर पैर तक वो सारे के सारे नबी अलैहिस्सलाम के नुसरत और हिमायत में गर्क थे, लेकिन कदम बजाय इस्लाम के मिल्लती अब्दुल मुत्तलिब पे थे, इसलिए आजाब कदमों पर मुसल्लत किया गया कि उसी वजह से अगर इसके कदम इस्लाम में थे तो ये कभी इसका पाँव भी जहन्नम में नहीं होते और उसके पाँव को भी आजाब नहीं होता। लेकिन ये तो पाँव से लेकर सर तक सारे के सारे तो नबी अलैहिस्सलाम की हिमायत करते थे, नबी अलैहिस्सलाम के नुसरत तो करते थे, नबी अलैहिस्सलाम के साथ ही थे, क्योंकि पहले जो भी वाकयात गुजर गया है इससे मालूम हो गया है कि उसने नबी अलैहिस्सलाम की मदद भी की और नबी अलैहिस्सलाम की हिमायत भी की। लेकिन उसका जो कदम थे, पांव थे, वो इस्लाम में नहीं थे, इसी वजह से जो इस्लाम में न होने की वजह से इसके सिर्फ पैरों को और पैर यानी टखनों तक इसको ये आजाब होगा जो सबसे कम आजाब है, ये उनको मिलेगा। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू से मरवी है, रवायत है कि जब अबू तालिब मर गए तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, आपका चचा ये गुमराह मर गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको दफन करके आओ। तो मैंने अर्ज किया कि वो तो मुशरिक है, मरा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, दफन करके आओ, यानी इसको दफन करो, अगर वो मुशरिक भी है तो फिर भी उसको दफन करो। और ये अबू दाऊद शरीफ में रवायत है और नसाई में भी है, जब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बाप यानी अबू तालिब को जब दफन करके वापस आए तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको बताया, फरमाया कि इग़तसिल, गुस्ल करो। तो इससे बहुत लोग उलमा इस्तिदलाल फरमाते हैं कि जब किसी काफिर को आप दफन कर ले, किसी मुशरिक को आप दफन कर ले, और इस तरह और रवायत से भी ये मालूम हो गया है कि जब आप किसी को दफन करें तो इसके बाद गुस्ल करना ये मुस्तहब है कि वो गुस्ल कर ले। तो इसी वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया कि आप गुस्ल कर ले। और एक रवायत में है कि जब नबी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उनको दफन कर दिया तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसको गुस्ल करने का हुक्म भी फरमाया कि आप गुस्ल कर ले। और इसी मसले से इस पर बाज़ उलमा का इत्तिफाक है कि जब भी काफिर को, यानी लाजिम नहीं है कि आप हर किसी काफिर को दफन कर लें, लेकिन बाज वक़्त अगर इस तरह हो कि कुफार का भी यही तरीका हो और जो दीन से अलावा और कोई लोगों का ये तरीका हो कि उसको दफन करते हैं तो उसके दफन के बाद वो गुस्ल करना चाहिए, क्योंकि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम ने उनको क्या फरमाया कि इग़तसिल, हुक्म क्या है कि आप इसके बाद गुस्ल किया करो। तो ये इसके बाद यानी नीयत को, और इस तरह काफिर के नीयत को, मुशरिक के नीयत को जब आप इसको दफन कर दे तो इसके बाद गुस्ल करना मुस्तहब है। तो अगर किसी ने कर लिया तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म भी है, और जब नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म है तो नबी अलैहिस्सलाम को सुन्नत को हर मुसलमान पर वो सही तरीके से अदा करना लाजिम है। ये तो नबी अलैहिस्सलाम और उन लोगों का जो उनके साथ, यानी नबी अलैहिस्सलाम ने उनके साथ जो शफकत और मोहब्बत का जो रास्ता वो यहाँ तक था। और इसके बाद बाज लोग इससे एक और मसला भी इसका इस्तेदलाल करता है कि जब एक काफिर मर जाए तो इससे जो बाकी माल रह गया है, ये ये लोग, तो इनमें अभी बात यह है कि काफिर से जब माल रह जाए तो ये काफिर को विरासत में मिलेगा, मुसलमान को विरासत नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि काफिर का माल है और काफिर के माल में मुसलमान का मीरास ये यानी मुसलमान काफिर से मीरास नहीं ले सकते। तो इसी वजह से जब अबू तालिब वो मर गए तो अबू तालिब के मरने के बाद
उनके बेटे तालिब और इस तरह औकेल, जाफर और अली थे। ये 4 थे। और फिर अबू तालिब के मीरास फकत सिर्फ और सिर्फ तालिब को मिली है, जो बाप की तरीके पर था, और अली और जाफर ये इसको यानी जाफर को नहीं मिली क्योंकि ये मुसलमान थे। इसी वजह से काफिर जब मर जाए तो उसकी विरासत का माल, जो विरासत का माल है वो सिर्फ काफिर ही को मिलेगा, मुसलमान को नहीं मिलेगा। वो भी इससे ज्यादातर उलमा इससे इस्तिदलाल करते हैं। और इस तरह अहले सुन्नत वल जमात अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि अबू तालिब कुफर ही पर मरे हैं, कि जो इससे इस वाक़े से वाज़ेह हो गया है कि वो कुफर ही पर मरे हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि वो इस्लाम लाए हैं, और बाज़ लोग अल-आयाज़ु बिल्लाह सुम्मा अल-आयाज़ु बिल्लाह अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये निस्बत करते हैं कि वो ईमान नहीं लाए बल्कि वो कुफर पर मरा है। अल-आयाज़ु बिल्लाह सुम्मा अल-आयाज़ु बिल्लाह, ये बाज़ लोगों का जो उसने दावा किया है या निस्बत किया है, यानी अबू तालिब को इस ईमान लाने का, ये उसने ये कहा है कि उसने ईमान लाए, और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल-आयाज़ु बिल्लाह सुम्मा अल-आयाज़ु बिल्लाह इसलिए इसकी तरफ इशारा किया कि वो ईमान लाने ईमान नहीं ईमान यानी ईमान लाने के बाद अल-आयाज़ु बिल्लाह मुर्तद होकर वो वफात हो चुका है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये कोई किसी किताब से ये साबित नहीं है। ये तो आमुल हुज़्न जब इसको कहते हैं, यानी इसने नबी अलैहिस्सलाम को इस साल को आमुल हुज़्न कहा, क्योंकि आमुल हुज़्न यानी गम का साल, ये मुसीबत का साल, क्योंकि खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो नबी अलैहिस्सलाम को हर काम में मशवरा देते थे, और जब बीवी अपने ज़ौज को और अपने खामन को हर चीज़ में मशवरा देते हैं, तो ये उसका यानी हमदर्दी में उनका साथी बन जाता है। जब साथी बन जाता है तो बहुत, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बोझ क्यों ना हो, जब घर में बीवी बीवी अपने ज़ौज को ये मशवरा देते हैं कि मतलब उसको मशवरा देते हैं कि आप इस तरह काम कर ले, इस तरह काम कर ले, तो वो बोझ इन पर हल्का हो जाते हैं। और दूसरे तरफ जब उनका अबू तालिब जो नबी अलैहिस्सलाम के हर वक़्त जो हमरा थे, हर वक़्त जो हामी थे, तो इसी वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने इस साल को आमुल हुज़्न वो करार दिया कि ये गम का साल था, यानी मैं जिसकी वजह से मैं आगे चल सका, और जो लोग हमारे हिमायत करते थे, आज मैं इस साल में उन दोनों से महरूम हो गई। इसी वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने इस साल को आमुल हुज़्न कह दिया। और इस तरह इंशाअल्लाह अगले सबक में जब नबी अलैहिस्सलाम वो त्वाइफ के सफ़र पर गए थे और वहाँ के लोगों को दावत दिया, और फिर वहाँ के लोगों ने उसको नबी अलैहिस्सलाम को कौन सी तकालीफ दी है, वो इंशाअल्लाह अगले दर्स में वो बयान होगा।